जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल। दिस इज 306th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस, जहां पे हम डिस्कस करते हैं मार्केट्स। वी कवर निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, एमसीएक्स एंड फॉरेक्स। एवरी सेगमेंट वी टच and today I think this is a very important live session, because today I'm going to discuss a lot of things about markets which will impact in entire March. So let me see how many people have joined, and then we will start this session. Good evening, good evening. Namaskar, namaskar, good evening. Please try to come early. That's not possible because I have other commitments also. Good evening, sir. Good evening. All right. So let us kickstart this session because it will be a long session. So I think we have all the regular audience. Okay, so Naveen, you missed the last 10 days due to COVID infection. Oh my God. Okay, so I hope you have recovered or you are recovering. And don't worry, everything will be fine. Jai Mata Di. All the best. Naveen Joshi. ओके चलिए, सो शुरू करते हैं दोस्तों। सो व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे? लास्ट जो लाइव सेशन हमने किया था, दैट वाज ऑन थर्सडे, एंड ऑन फ्राइडे आई थिंक इट वाज अ इंटरेस्टिंग डे बिकॉज few things went as per the plan, few things did not go as per the plan. So I think it was a mixed bag, but definitely market has given a lot of message for the coming week, and I would say for rest of March also. Okay, so I feel I have understood the market action of last week, and based upon that I'm going to extrapolate what's going to happen in the next week and as well as for rest of the month. So let us start by discussing about global markets. So Friday, what happened? There was a big bounce in the S&P 500 and US markets. They technically broke in last week, and there was a decent fall. We had discussed this possibility कि S&P 500 में एक अच्छी गिरावट होनी चाहिए, and that same thing happened. If you remember, I had advised to short S&P futures at 3920, 3900. This was the shorting areas, and we have pretty much moved down by almost 200 points. So that is a almost 6%, 5% drop, right? Now, Friday, what happened? Friday, markets were anticipating that there will be the stimulus package passed on, and today I think we have got the news that the stimulus package has been passed, or at least it has been moved to the higher category for further sanctions and all. So I think market has factored in on Friday, but yes, there can be some more upside. Probably, markets can take this in a bullish manner, and markets can definitely try to make a new high. As far as S&P 500 is concerned, see, this market is something which has not performed much in this year as of now, and most of the appreciation has come from the emerging market equities, including India. So यूएस मार्केट में मेरा क्या व्यू है? सी यूएस मार्केट में ऐसा सिचुएशन है दोस्तों कि जब तक इसमें एक 4000 का लेवल क्रॉस नहीं होता, it will more or less trade in this zigzag probably manner, and this is not good because sooner or later this can take a nasty head and shoulder pattern, and we can see a nasty drop already. We have to come back again at these levels of 3500. So US market में मेरे ख्याल से जब तक ये 4000 का बैरियर है, it will be a range bound market with a potential to drop anytime in near future on the back of any negative news. तो यूएस मार्केट से ज्यादा कुछ मुझे उम्मीद नहीं है। 4000 का हमारा सीलिंग है इस मार्केट में। जब तक 4000 के ऊपर ये नहीं ट्रेड करता, तब तक any good bounce, any decent rally, you can short the S&P 500 futures, and definitely it will be a money spinner for you.
Now, what is the effect or what will be the effect of this news of यूएस फेड? देखिए इसमें एक अच्छा इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा कि आपकी जो निफ्टी वगैरह है इस पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, एंड देन इट मे इम्पैक्ट नेगेटिवली टू द यूएस डॉलर एंड इट मे इम्पैक्ट पॉजिटिवली टू यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड। तो यानी इसका इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिलेगा। जो एक इंडेक्स जिसको मैं काफी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, दैट इज इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, राइट नाउ ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट $54। नाउ इस इंडेक्स को मैं क्यों ट्रैक कर रहा हूँ? बिकॉज दिस इज द इंडेक्स दैट shows us the flow of money in our markets. Okay, so now ये इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ये एक डेंजर टेरिटरी में है काफी दिनों से, एंड ऑन दिस इंडेक्स we have already approached the long term resistance and we have already broken down in a very sharp manner, and I would say recently it was making a head and shoulder pattern. If you see, this is the very nice head and shoulder pattern, out of which the right shoulder is very much on the downside, and this is the neckline. Now on Friday we just got a breach of this neckline and then there was a bounce back. सो अब इसमें देखना ये होगा कि क्या ये इंडेक्स फ्राइडे के नीचे ट्रेड करता है कि नहीं करता है, बिकॉज इफ दिस इंडेक्स स्टार्ट्स टू ट्रेड ऑन द डाउन साइड इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ, एंड इवन आवर मार्केट्स विल स्टार्ट टू देन क्रैक विथ स्पीड। अभी तक हमारे बाजार में जो एक क्रैक हुआ था उसके बाद से हमारा मार्केट बाउंस किया एंड देन इट इज doing somewhat like this consolidation इसमें चालू है, but if this index breaks down then our index shall also follow this on the downside. Now Friday की एक्टिविटी देखने के बाद अगर ये इंडेक्स ऊपर चलना शुरू करता है then it may become again very bullish and it may again try to go towards the newer highs, but overall I think the high is made on this ETF. I don't think there will be a new high, or I should say a sustainable new high looks very tough to me, and sooner or later all these distributions will uh, culminate into a downfall. It's just a matter of time. So कैसे हम ट्रेड करेंगे, क्या हमारा व्यू होगा इस हफ्ते के लिए बेस्ड ऑन द ग्लोबल क्यूज? लेट अस सी. सो आई विल ओपन द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड लेट अस फर्स्ट डू अ वीकली एनालिसिस. तो एक सिंपल सा वीकली चार्ट हम खोलेंगे. चार्ट्स तो मेरे सिंपल नहीं होते, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल मैनर. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस चार्ट. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम मार्च 2020. सो 2020 से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम करेक्शन वाज फॉर 3 वीक्स. ओके, then we have almost kind of 5 weeks correction as well. This can be counted as 4 weeks of correction, so this is a 5 week, then again 3 week, again maximum 3 week, again we have completed the third. Now we will be in the fourth. So if you look by time cycle, we have not seen a market going sideways to negative for more than 1 month. अंडरस्टैंडिंग. सो आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा इतना ही गया है. प्राइस डैमेज भी कुछ खास नहीं है. अर्लियर करेक्शंस यूज्ड टू बी बिगर वन, एंड नाउ दिस इज अगेन going to complete the time cycle. So what I would suggest for this coming week is that in this week I think market should bottom out. Okay, either price wise or time wise, or I should say both, because I don't see this market going down much provided we do not break the lows. Okay, so कहने का सिंपल मतलब क्या है कि see, initially this market has made a price bottom over here, which I feel will not be broken in March. Okay, unless something disastrous happen, I don't think this is going to break down in March. At best हम यहाँ पे आ सकते हैं, थोड़ा सा इसको टीज कर सकते हैं, but then I think this market is again going to rally. Okay, overall I feel this is the fourth wave correction, and because we had a second wave simple ABC correction, this is going to take a little different or little channelized or little double corrective, some sort of complicated एक corrective wave ये चालू है, and post which I feel market should again start to go back towards the 15,600 and 700 and possibly even 16,000 level also. तो ये एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पिक्चर इसमें ऐसा है कि बॉटम लगभग ये बन चुका है. एट बेस्ट हम एक इसको फ्लश कर सकते हैं या डबल बॉटम टाइप कुछ कर सकते हैं, बट देन अगेन दिस मार्केट शुड स्टार्ट टू गो अप टुवर्ड्स
maybe a slight new high, maybe a decent new high, और ऑल द वे टुवर्ड 16,000। मैंने जो पुराने जो मेरे जोन्स हैं इस मार्केट का टॉप आउट करने के लिए वो था 15,470 से लेके 15,770, ठीक है, जिसमें से पहला जो अभी हाई बना है वो एग्जैक्टली अराउंड यही लेवल है, आई थिंक 15,470 के आसपास है। सो ये जोन मैं अभी भी कंसिडर करूंगा दैट यस दिस इज द पिकिंग आउट जोन, एंड दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग दैट नेक्स्ट फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू रैली वंस अगेन। अब एग्जैक्ट क्या लेवल होंगे, इस वीक के क्या लेवल्स होंगे, कल के क्या लेवल्स होंगे, इन सब चीज़ों पे मैं अभी डिस्कशन करता हूँ, बट आई होप आई हैव एक्सप्लेन दी बिगर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज इस बाजार में बड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस go for the weekly analysis. So as per this weekly candle, what has happened? इस कैंडल का मतलब क्या है? See, last two consecutive candles were bearish candles थे, and bears were completely in the control. This candle was a range expansion candle, right? Because the size is higher than this. This candle had a similar range, but it traded in a very bullish manner. Okay, now all the bulls they need to cross a particular level which is approximately 14,950 and 15,000 mark, and once we start to trade above that 15,000 mark, I think bulls will be in control. So weekly mob level क्या होगा, इन सब चीजों पे हम अभी एक डिस्कशन करते हैं। Let me open the daily chart for you. Now, what are the observations on daily chart? See, this chart may look very complicated because I have plotted everything on this, which is price, time, all sort of calculations are there in this chart. So it may look little, choppy. It may look very bad. But so what is that I am expecting? See, I am expecting a bottom to be made by 9th of March. Okay, it can be before, it can be exactly on 9th of March. So 9th of March, I am expecting that Nifty should bottom out price time wise both, and then we should start to see the uptrend. So basically what I feel is that we have completed one round of price correction over here on this day like this, and then we have started a uptrend, out of which we took out the highs of this, and we managed to take out the highs on closing basis as well, and then we are doing a retracement of this up move. We are doing the retracement of this up move. Now anybody can tell me, if this market bounces back again like this, do you see a bullish inverted head and shoulder pattern? I think all of us can see that. So this will be again a sign of bullishness. Okay. Now over here, there lies a multiple support. Number one support is a long-term trend line, which is coming from, many years. And if you look at the left-hand side, this is the trend line which acted as a resistance twice in January. And then we broke above this. We came back again. Since we came back for the first time, it took support, it bounced, and then we broke below this level on closing basis, but then further follow-up action was missing. Further follow-through could not happen, and again we have bounced above that. So technically speaking, if this market comes down over here, this level, which is 14,750, this level is going to offer a huge support on multiple grounds. Number one, because of this trend line. Number two, if you compare this bottom and draw a future potential trend line, okay, so this will come over here, and plus there is this pitchfork median line. So as you can see, there are couple of lines coming over here, and plus if you plot the Fibonacci retracement, I'm sure it will be around 61% rate. I have not done, but somebody can draw and actually check. I'm sure it will be 61.8, which is the golden ratio. So we have multiple supports over here, and this is the area which I'm expecting to be the secondary bottom. So this was the first bottom, this will be the second bottom, post which I expect market to have completed this correction, which started from say 15th of March, and then probably we will start the last wave for this market. And this last wave can go minimum towards say 15,500, okay, and it may continue to move. So that we will see later on. The expected zone comes from say 15,500 to 16,000 band, okay.
So that we will see later on. Correct? See somebody, yeah. So somebody cross checked also that it is coming around, yeah, 61.8, 14,000, 14,775, yeah. सो तो दोस्तों ये है एक टेक्सचर बाजार का, स्पेशली निफ्टी का, और इस तरीके से फ्यूचर सिनेरियोस हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कि लेवल्स क्या होगा। तो लेट मी टेल यू कि जो वीकली मॉब लेवल है, ओके, जो वीकली मॉब लेवल है, मैं इसको रखना पसंद करूंगा अप्रोक्सीमेटली, आई वुड से यू नो दिस लेवल। Now, why I'm taking this level? This is a very unique level, uh, because if you look at the Friday's action, if we start to close above this level, then market can easily take out the 15,080 mark, which has been our flip zone, which has been our mob level since many days. How many people remember this? 15,075 जो है, ये हमारा काफी दिनों से एक ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल रहा है। बट ये जो 3 दिन है, इस 3 दिनों में इस लेवल के साथ एक डील हो चुकी है, एक नेगोशिएशन हो चुकी है। तो अब ये जो लेवल है ये अब कमजोर हो चुका है, इसकी उतनी वैल्यू नहीं है। अब इस लेवल का वैल्यू है 14,983। सो द वीकली मॉब लेवल, द वीकली mob level, or let me write it again, the weekly mob level, make or break level, or you can say trend deciding level, I would say stands at say 14,985. You can make it round figure as 15,000 level also. Okay, you can make it just round figure कर देंगे 15,000। इसके ऊपर मेरा पहला टारगेट क्या होगा? देखिए लॉजिकली सोचिए, अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू हुआ तो फ्राइडे का हाई, क्योंकि ये वीक है, इट इज अ इजी ग्राउंड फॉर मार्केट टू कवर, तो यानी यहां तक तो छलांग लग जाएगी। अब इसके पहले वाले कैंडल को देखते हैं, तो इसकी बॉडी यहां तक है और इसका विक यहां तक है, यानी यहां तक तो इजीली चल जाएगा। अब क्योंकि पिछला कैंडल का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो यहां जाके क्यों रुकेगा? वो ऑलमोस्ट इसको टच करेगा। अंडरस्टैंडिंग? कैंडल स्टिक्स को रीड करना सीखिए। कैंडल स्टिक को रीड करना जब तक आप नहीं समझोगे, आपको फ्लो ऑफ प्राइस समझ में नहीं आएगा। So the first target above this will be straight away 15,300, 15,300, and above this, then it's a new high. So I would keep this energy point as the target, which stands around, I think, 15,550, something like this, 15,550। अब इसके ऊपर मार्केट अगर जाता है तो it will be in a very strong area, and then any level can be seen, 15,750, 16,000, all those levels are possible. I will not write down because I feel in this week market will try to complete the correction part first, and in next week, from next week, market will start to move above these areas, or maybe move to these areas। ठीक है, सो फिलहाल इस वीक के लिए मैं ये 2 टारगेट्स ऊपर में रख रहा हूँ। रीजन, लॉजिक, सारा चीज आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसके नीचे 14,985, 14,985 के नीचे मार्केट हैज ऑल द राइट एंड मार्केट हैज ऑल द एनर्जी टू ट्रैवल ऑन द डाउन साइड। सो व्हाट वी विल डू इज, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या हम रखेंगे? 14,750, 14,770। नाउ दिस इज दैट लेवल which I was talking about। ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी दिन बाजार इस लेवल पे आता है तो इस लेवल से हम जो है अगर रिवर्सल का वेट करेंगे, some reversal we will observe and then we will try to buy, और I would suggest कि don't buy, just let it get bottom out, और जब अगला ट्रेंड शुरू होगा तब हम बाय करेंगे in a trend continuation pattern। ओके, सो एक टारगेट नीचे में है, इसके नीचे अगर ये बाजार ट्रेड करता है then I think it can become little dangerous, and मैं सेकेंड टारगेट ये रखूंगा which is around 14,520। ओके, 14,520। सो अगर मैं एक समराइज करूं इसको, तो 2 क्रिटिकल लेवल हैं इस बाजार में। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एग्जिट करता है 14,750 में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ओके, मोमेंटम ब्रेकआउट शैल हैपन अबव 14,985। दिस इज आवर वीकली मॉब लेवल, एंड दिस इज द लेवल व्हिच निफ्टी शुड reclaim on closing basis to get the momentum reversal on the long side। इसको फिलहाल आप एक 200 पॉइंट का आप एक ट्रेडिंग रेंज भी कंसिडर कर सकते हैं कि ऊपर में 15,000 का स्ट्राइक प्राइस, नीचे में 14,750 या 700 का स्ट्राइक प्राइस, इस तरीके से। ठीक है, एंड इसके नीचे
बेरिश मोमेंटम एंड इसके ऊपर बुलिश मोमेंटम। अगर आप इस तरीके से बाजार को अप्रोच करेंगे तो ऑप्शन में भी काम कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हो एंड मैनेज अच्छे से आप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, दैट्स द वीकली एनालिसिस for this week. As I believe, I am expecting 9th March to be the bottom price and time wise both. And overall, I believe this week will be the completion of this correction which started from this day, and maybe from next week we may start to shoot on the higher side. ठीक है, so ये है overall price and time and market geometry analysis of your Nifty। दोस्तों अगर एनालिसिस सही लग रहा है आपको, अगर आप सहमत है एनालिसिस से तो शो मी थम्स अप, या आप टाइप करके बताइए कि आपको एनालिसिस सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट टुमारो सेशन की कल की क्या एक्सपेक्टेशन है। सी फ्राइडे के लिए हमने मॉब लेवल रखा था अराउंड 15,150 and there was a gap down opening and thereafter market started to trade on the lower side. I tried to take a long trade over here, okay, but I was stopped out. Now why I tried to take a long trade over here, the reason was very simple, that I thought this is making a falling wedge pattern like this. We are already in this uptrend, so I thought this is a triangle correction like this with a falling wedge texture, and then we should shoot on the higher side, continue the trend, okay। so ये एक बहुत ही अच्छा risk reward trade था and risk भी कोई ज़्यादा नहीं था, that is why I took, and then it got stopped out, okay। then after this fall I alerted the students, I want them in our telegram group that do not carry shorts, close all your shorts because market is going to bounce, and then market consolidated over here and then Nifty bounced almost say 80-90 points and we closed at just boundary line which is 14,963. So overall I think this anticipation of mine was correct, it's just that we could not get through, so the anticipation was correct। now कल के लिए क्या हम ट्रेड करें, कल किस तरीके से हम बाजार को देखते हैं। सी टुमारो कैन बी, it's difficult to predict, difficult to gauge because stimulus news को बाजार किस तरीके से लेता है, it is always very dicey situation। क्योंकि अगर कोई न्यूज़ फर्स्ट टाइम होती है तो उसका रिएक्शन जज करना इजी होता है, सेकेंड टाइम भी इजी होता है, but we have seen so many times these stimulus news and everything, sometimes they work, sometimes they are already factored in by prices, so it is really difficult to say। but एक natural क्या tendency होगा बाजार का, it's a bullish news, so market can decide to go on the upside। so कल के लिए देखिए क्या मॉब लेवल क्या रखेंगे, कल का ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल कहाँ पे होगा। जहां तक मुझे लगता है कल का लेवल जो है हमको रखना चाहिए अराउंड, आई वुड से the same level which is the weekly mob level। so what I would suggest is we can keep the same 14,985। I think that level is very nice, at that same level will be our mob level। तो कल का इंट्राडे भी सेम लेवल होगा, मॉब लेवल होगा हमारा 14,985 and above this we will be bullish। फर्स्ट टारगेट होगा 15,080 and second target होगा 15,158। so what did I say, I said that ये हमारा जो breakdown level था that will be our trend deciding level। अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो definitely we are going to hit 100 points on the upside, and then yes, very well we can also choose to touch these levels of 15,160, 15,170 as well, okay। On the downside, if this market doesn't clear the mob level, on the downside we can see 18,880 ये लेवल जो है बाजार एक बार टच कर सकता है, and then the second level of say 14,786, ठीक है। so these are the levels that I will be watching for tomorrow। this is 14,880 and second level is 14,776, okay। so two levels I'm targeting, one is this, the other one is this, on the upside one is this and the other one is this, okay। now how to trade, scenario number one, if there is a flat opening go by mob levels। scenario number two, if there is a gap up opening above the mob level then we will definitely look to play on the long side, we will use VWAP, and students who have attended my training about how to trade Nifty and Bank Nifty, you can use lot of other insights, and plus I will be in the group to guide you guys। so ऊपर में तेजी करेंगे, नीचे मंदी करेंगे। now एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो
ट्रेंड ब्रेकआउट लेवल है वो है 15,080 के आसपास, करेक्ट। नाउ इंट्राडे सपोज मार्केट हैज broken this resistance and we are trading higher, we have completed the two targets on the upside, then later on if you feel that there is some sort of exhaustion coming या मार्केट खुद जो है कमजोर दिखाई दे रहा है क्योंकि दो टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे आप एक शॉर्ट ट्रेड भी ट्राई कर सकते हो, ओके। एंड इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पर्टिकुलर लेवल जो थर्सडे का हाई बना था, सो दैट विल बी अराउंड 15,200 एंड 225। सो इसको आप एज अ स्टॉप लॉस यूज करके आप इसको एक और बार सेल कर सकते हो एंड आई एम श्योर इट विल कम बैक ऑल द वे टुवर्ड्स 14,985। तो ये जो दूसरी जो एक चाल है, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एक मैं कहूंगा 180 पॉइंट या 200 पॉइंट का यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप मिल सकता है। एंड सपोज इफ वी स्टार्ट गैप डाउन और बेरिश ओपनिंग, तो फिर ये नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन होगा। एंड एज आई सेड कि 14,786 ये जो लेवल है, यहाँ पे सावधान रहेंगे शॉर्ट्स को यहाँ पे कट करने का आप देखना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल एंड मार्केट कैन वेरी वेल स्टार्ट टू बाउंस फ्रॉम दिस लेवल, ओके। सो ब्लाइंडली यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है, द पॉइंट इज यू कैन स्टार्ट टू एग्जिट योर शॉर्ट्स and look for signs of reversal or signs of bearish exhaustion, and then you can try to take some smart longs, इनको smart longs हम कहते हैं। and again 180 to 200 points का नीचे से एक ऊपर में ट्रेड हो सकता है, ठीक है। any kind of long if you are doing here and suppose the entire day was very negative, very bad opening, तो be very careful, ये कॉमन सेंस और मैच्योरिटी आपको यूज करना है, बिकॉज आई विल नॉट बी देयर टू गाइड इन रियल मार्केट्स। यस, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप में एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं रहता हूँ, तो मैं अपना व्यू रियल टाइम शेयर कर देता हूँ, जिससे उनको काफी फायदा हो जाता है। बट फॉर अदर पीपल आई विल नॉट बी देयर, राइट। सो यूज योर डिस्क्रिप्शन वाइजली एंड देन ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो दैट्स ऑल। काफी डिटेल एनालिसिस बता चुका हूँ दोस्तों, निफ्टी, इंट्राडे as well as positional. Now let me very quickly come to the बैंक निफ्टी। so बैंक निफ्टी मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगा है, बिकॉज देखो बैंक निफ्टी में एक अच्छा यहाँ पे एक सेटअप क्रिएट हो रहा है। व्हाट इज दैट सेटअप? सी दिस सेटअप एज ऑफ नाउ इज लुकिंग वेरी न्यूट्रल, ओके। व्हेन आई से न्यूट्रल आई मीन कि बैंक निफ्टी में देखो गिरावट तो अच्छी हुई है, ऑलमोस्ट ये तीसरा हफ्ता था, एंड बट व्हाट इज नॉट encouraging for bears is that there is no enough of price damage. There is no enough of price damage, especially we had such a huge ballistic up move over here, then we consolidated, and then we again try to move past this resistance, and then we face the bear pressure, then we face the selling pressure. But despite that, if you consider this as a swing, from a swing perspective, it just looks very bullish. It still looks bullish. Why? Because if you consider this as a up move and this as a correction, this is what, hardly or 50% Fibonacci retracement, right? So from that perspective, this is looking still bullish. This is still looking bullish on the higher time frame. बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूं मैं, छोटी पिक्चर की बात नहीं कर रहा। तो एक तो ये यहाँ पे सपोर्ट है बॉस इसका, ठीक है। दूसरा चीज, ये एक ब्लैक लाइन जो है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस। आप सोचो कि कितना तगड़ा रेजिस्टेंस होगा कि इसको जैसे ही बाजार ने, बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया था, इसमें इतनी बड़ी रैली हुई। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये ह्यूज रेजिस्टेंस था इस मार्केट के लिए, एंड बिकॉज वी आर कमिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, मार्केट और बैंक निफ्टी कैन टेक सपोर्ट ओवर हियर। एंड third indicator is this pitchfork. If you look at this pitchfork, the lower parallel support again comes at this level. Then if you combine with the other minor pitchfork, again if you see, this is the resistance breakout retest. So as you can see, there are super confluence, super supports existing near this 34,500 area. So this is that area which is a very, very solid support, and till this area is not taken down on the weekly charts, Bank Nifty has all the constitutional right to again go towards 39,000. Now see, understand one thing. Now last week हो सकता है आप लोग सोच रहे, आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो। लास्ट वीक मैंने बेरिश की बात की, लास्ट वीक मैंने कहा कि ये बाजार डिस्ट्रीब्यूशन में जा चुका है, तो इसमें रोटेशनल मूव्स होंगे, ऐसे माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, राइट। तो वो सारी बातें अभी भी करेक्ट हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब नहीं होता कि बाजार ऊपर चलना बंद हो जाएगा, नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन एक टेक्सचर होता है,
कि इसकी टोपी उसके सर पे चिपकाया जा रहा है, और जो बंदे को प्रॉफिट मिल रहा है उसको लग रहा है कि वही स्मार्ट आदमी है, राइट? बट ही विल रियलाइज दैट लेटर ऑन उसके सर पे किसी और की टोपी आ चुकी है। इट्स अ रोटेशनल मार्केट ना, इट्स अ सेक्टोरल रोटेशन चल रहा है इसमें। तो इस बाजार में इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है, इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है। एंड ये हो सकता है कि इस लेग में पब्लिक को कंफ्यूज कर दें, बेरिश दिखा के पब्लिक को कंफ्यूज करा दें, पीपल विल मिस आउट ऑन लॉन्ग ऑफ ट्रेड्स, एंड देन दे विल रियलाइज कि यार वी शुड हैव बॉट इट। अगले राउंड में जब करेक्शन आएगा तो पब्लिक इसमें बाई करेगी, ठीक है, पब्लिक इसमें बाई करेगी इस करेक्शन में, देन ये थोड़ा और ऊपर लेके जाएगा एंड देन गॉन, and then gone. So understand from a psychological perspective also, this is looking absolutely brilliant to me. जब तक ये व्यू मेंटेन है, I think I will stick to my analysis. अगर कुछ और हो जाता है गड़बड़ बाजार में, कोई बहुत ही नेगेटिविटी, तब हम बात का बाद में देखेंगे। चलिए, काफी बातें हो गई, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं कि लेवल्स क्या होंगे। तो बेस्ड ऑन द डेली चार्ट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि हम जो एक वीकली और डेली मॉब लेवल जो रखेंगे वो होगा फ्राइडे का ओपनिंग लेवल, फ्राइडे का ओपनिंग लेवल। एंड ये काफ़ी सोच विचार करने के बाद ये लेवल मैंने निकाला है। सो दैट लेवल कम्स टू 35,460। तो कल का भी यही मॉब लेवल होगा, एंड वीकली मॉब लेवल विल ऑल्सो बी दिस 35,460। आप इसको राउंड नंबर कर सकते हैं 35,500, राइट? Above this my first target will be around 36,500। ये वीकली टारगेट्स हैं, डेली नहीं है, वीकली है, ठीक है। एंड सेकेंड टारगेट विल बी दिस विच इज योर 37,300 के आसपास, 37,300। ओके, सो आई एम टारगेटिंग बैंक निफ्टी टू और आई शुड से इफ बैंक निफ्टी moves above this area, I think because of this wick and the potential top over here, this should be the first target and then this should be the second target। तो ये ट्रेजेक्टरी में ऐसे मैं इसमें देख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम मॉब लेवल के नीचे ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ में 34,800 दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट ऑन द शॉर्ट साइड। तो जब तक मॉब लेवल के नीचे है, मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बेरिशनेस मेंटेन करूंगा फॉर एटलीस्ट दिस लेवल विच इज 34,800, जहां पे मैं हो सकता है कि शॉर्ट्स को एक बार कट कर दूं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा बेरिशनेस के साथ मार्केट यहाँ पे जा रहा है देन आई विल प्रॉब्ली ट्राई टू ट्रेल। व्हाई? बिकॉज इफ दिस लेवल इज ब्रोकन then we would have created a newer low, and in that case ये बाजार जा सकता है लगभग 34,200 के आसपास, 34,200। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इसमें बोनस मिलेगा, ठीक है। तो ये दो टारगेट्स हैं डाउन साइड में, ये दो टारगेट्स हैं अप साइड में। क्रूशियल लेवल है ये, एंड दिस इज द लेवल दैट आई विल बी वाचिंग। ओके, ओवरऑल मैं बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी मोर ऑफ टाइम करेक्शन कर रहा है, नॉट प्राइस करेक्शन, एंड टिल आवर the weekly charts are intact, we deserve one more round of up move. Now that up move can be simply a double top or swing high failure, or it may keep on stretching till 39,000, that we will see at that particular time. Okay, but this is the road map going forward for bank nifty। अब कल का जो लेवल्स है अगेन वेरी सिंपल होगा। मॉब लेवल जो है कल का लगभग ये जो सेकेंड हाफ का रेजिस्टेंस था आपका फ्राइडे का दिन, यही हम मॉब लेवल रखेंगे कल के लिए। दिस इज द सेलिंग एरियाज। सो द मॉब लेवल फॉर टुमारो सेशन कम्स टू 35,440। ओके, सो सेम है, लगभग सेम है, 35,450 के आसपास है, सेम है, ठीक है। इसके ऊपर देखिए हम तेजी करेंगे, इसके ऊपर हम तेजी करेंगे, एंड देयर इज दिस गैप व्हिच इज लेफ्ट आउट। सो माय फर्स्ट टारगेट ऑन द अपसाइड विल बी योर 35,800, 35,800, ठीक है। 35,800 ये जो गैप था अपना, ये हमारा पहला टारगेट होगा, एंड दूसरा टारगेट होगा 35,995। दैट्स इट। तो लगभग 500 पॉइंट अपसाइड में हम देख रहे हैं मॉब लेवल के ऊपर, या ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स, दिस बीइंग फर्स्ट टारगेट, देन दिस इज द ब्रेकडाउन रीटेस्ट, ठीक है, ब्रेकडाउन रीटेस्ट ओवर हियर। इसके नीचे मैं बेरिश रहूंगा, इसके नीचे मैं बेरिश रहूंगा, and with soft hands I would like to try the shorts। when I say with soft hands, why I am saying so, because the bigger picture still is intact on the upside। तो मुझे वो फैग एंड में शॉर्ट करके फंसना नहीं है। ओके, उसी को कहते हैं बेयर ट्रैप, एंड जो ऊपर बनता है उसको कहते हैं बुल ट्रैप। सो 35,440 के नीचे पहला टारगेट क्या होगा?
पहला टारगेट होगा 34,820 और दूसरा टारगेट क्या होगा यहाँ पे which is 34,682. So two targets on the downside, two targets on the upside. फाइन. सो ये है हमारा कल का बैंक निफ्टी एनालिसिस. सो दोस्तों आई हैव कंप्लीटेड weekly and daily analysis of both Nifty and Bank Nifty, and I would just like to add that on Bank Nifty, I'm seeing a kind of a falling wedge type of a pattern developing, something like this. Let us see how it behaves, and I think that's a fairly good falling wedge pattern. Probably if this takes out the previous lows and then starts to reverse like this, I think that will be the fabulous reversal, and I will definitely catch this train for a flight. चलिए, ये हो गया दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस. नाउ लेट अस वाइंड अप दी सेशन. क्या अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछिए. एंड yeah, so there are many things, but I think ठीक है, इतनी एनालिसिस आज के लिए काफ़ी है, राइट. सो व्हाट एल्स. करेंसी में देखिए यूएस डॉलर में एक अच्छी रिवर्सल हुई है. दैट इज समथिंग विच इज क्वाइट ट्रस्टवर्दी. दैट इज समथिंग विच विल हैव फ्यूचर लेग्स. तो यूएस डॉलर में एक बॉटम कॉलिंग मैं कर रहा हूँ. वाई? बिकॉज सी यूएस डॉलर में सबसे पहले मैंने ये कहा था कि 2021 में एक बुलिश तेजी होगी. यहाँ पे मैंने कहा कि अब ये गिरेगा एंड इसको ब्रेक करेगा. देन इट वेंट डाउन एंड इट ब्रोक एंड इमीडिएटली, ये हमने पहले एडवांस में कहा था अगर आपको याद हो, कि ये जो लो है ये गिरेगा एंड उसके बाद जो रिवर्सल होगा दैट विल बी द करेक्ट रिवर्सल. कितने लोग अग्री करते हैं इस बात पे, राइट? सो ये जो रिवर्सल है आप देख सकते हो कि कंपेयर this reversal ABC versus this reversal, you will definitely see a remarkable difference, right? So US डॉलर में बॉटम में कॉल कर रहा हूँ. US डॉलर जो है बॉटम आउट यहाँ पे हो चुका है. Now what is the target for this? See, this is the US dollar being traded on the FXCM index. बहुत सारे लोग यूएस डॉलर को एक्चुअल DXY को फॉलो करते हैं. मैं ज़रा इसको फॉलो करता हूँ. तो लेवल्स सेम ही आएंगे, सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे. तो मेरा टारगेट है इसमें लगभग 12,000 का, विच इज़ द 200-day मूविंग एवरेज फॉर द यूएस डॉलर. सो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल पुलबैक्स टू बी बॉट एंड दिस इज द मूव दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द यूएस डॉलर. नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर यूएस डॉलर ऊपर जाएगा तो हमारा बाजार कैसे ऊपर जाएगा? सो व्हाट हैपेंस, देयर इज ऑलवेज अ लीड एंड लैग इफेक्ट इन मार्केट्स. So sometimes they both move together, but अगर वो कंटिन्यूएशन हो रहा है तो कोई एक चीज जो है बैक ऑफ कर जाएगा. ठीक है, तो अभी हो सकता है कि यूएस डॉलर के साथ ही मार्केट भी ऊपर जाए, बट आफ्टर फ्यू वीक्स वंस द इक्विटीज कंप्लीट देयर अपसाइड टारगेट्स, व्हाट विल हैपन इज currency will continue its trajectory and the equities will take a back seat. Okay, तो इस तरीके से ये चीज होगा. यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, आई थिंक ये तो एक डाउन ट्रेंड में अब एस्टेब्लिश हो चुके हैं, बट बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस न्यूज देयर कैन बी सम टेक्निकल बाउंसेस, बट वी विल लुक टू शॉर्ट सेल द यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी. करेंसी में इतना जल्दी यहाँ पे मुझे ट्रेड अभी लेना नहीं है. सो वी आर गोइंग विथ वेरी सॉफ्ट हैंड्स ऑन दी फॉरेक्स मार्केट. ओके, क्योंकि करेंसी में दो चीज़ें हुई हैं. एक तो USDINR का बिहेवियर वाज वेरी वियर्ड. ओके, एंड दैट इज व्हाई द करेंसी मार्केट वी आर नॉट टचिंग मच. सो वी आर कीपिंग अ क्लोज वॉच, बट हम थोड़ा बैकफुट पे हैं. सो करेंसी में ज़्यादा नहीं कहूँगा. अब आते हैं वेरी क्विकली MCX की बात करते हैं. तो MCX में देखिए क्या हुआ है. फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन क्रूड ऑयल में बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई. Now this is the surprise package. Why? Because we were not expecting the up move in crude oil, और especially Friday तक ठीक था, sorry Thursday तक ठीक था, but Friday के दिन ये continuation हो गया, and this is where a heavy breakout type of a move has been seen in the crude oil. Now what is the situation over here? The situation is that crude oil has broken some significant resistance. ओके, एज यू कैन सी ये प्री कोविड रेजिस्टेंस थे जहां से एक कंप्लीट डिजास्टरस एक बेयर मार्केट हुआ था, राइट? एंड देन दिस वाज अगेन वन टॉप, एंड दिस वीक वी हैव मैनेज्ड टू मैनेज टू टेक आउट दिस लेवल्स ऑन क्लोजिंग बेसिस. तो ये काफी एक बुलिश मैसेज कन्वे कर रहा है क्रूड ऑयल. नाउ एक चीज आप ध्यान में रखिए,
क्रूड ऑयल अगर तेजी में है तो आपका इक्विटी भी तेजी में रहेगा। क्रूड ऑयल अगर तेजी में है तो आपका इक्विटी भी तेजी में रहेगा। क्रूड ऑयल जब तक तेजी में रहेगा तब तक इक्विटी तेजी में रहेगा। दे विल बोथ मूव हैंड इन हैंड। ओके, सिर्फ एक ही डिफरेंस ये है कि क्रूड ऑयल का अपसाइड जो है ये कितना भी भाग जाएगा, इसमें लिमिटेशन आएगी, बट स्टॉक में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओके, दैट इज ओनली डिफरेंस। सो क्रूड ऑयल में इस वीक के लिए क्या हमारा अप्रोच होगा? सो आई वुड से वी विल गो विद वेरी सॉफ्ट हैंड्स बिकॉज इट कैन स्टिल स्ट्रेच टुवर्ड्स $72। क्या ये वाकई जाएगा 72 तक? आई डोंट नो। हो सकता है बस यहीं पे ये पॉज ले एंड देन अगेन few days of correction and again upside resumption होगा। बट फिलहाल के लिए आई थिंक दिस $66 $67, आई थिंक दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस। तो मे बी अगर मंडे को हम यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस वगैरह ले रहे हैं देन वी विल ट्राई टू शॉर्ट। ओके, बट बी केयरफुल और बहुत ही हल्के हाथों से चलना है। तो कैसा मूव्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रूड ऑयल में? देखिए कुछ इस तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन है। नंबर वन बात तो ये है कि इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे लेना होगा। सो इट शुड नॉट क्रॉस दी 66.5 और रफली यू कैन से $67। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो कोई शॉर्ट नहीं करना है। बट हाँ, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह ले रहा है अराउंड दिस 66 to $67 के बीच में, देन व्हाट आई फील इज दैट कि क्रूड ऑयल जैसे ही हर बार एक न्यू हाई के बाद कंसोलिडेशन करता है, okay, similar thing can happen and then this resistance can become a support over here which lies around you can say $62.5. Okay, so I'm expecting one downtrend like this. It's not a downtrend, just a correction, breakout, retest, correction, and then from here probably again it may choose to go up or it may choose to पीक आउट लाइक दिस, वो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये मेरा व्यू है कि लगभग 66 और $67 के बीच में ये सैचुरेट करेगा। यहाँ से जो है करेक्शन आएगा 62.5 के लिए, जहाँ से वापस एक अपमूव शुरू होगा। दैट अपमूव वी विल वॉच वेदर इट इज ब्रेकिंग दीज रेजिस्टेंसेस। अगर ये ब्रेक होते हैं तो अगले राउंड में ये $72 जाएगा, जो एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस होगा। अंडरस्टैंडिंग? नाउ इस बीच पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या हो रहा है? देखिए पॉलिटिकल फ्रंट पे ये हो रहा है कि साउदी ने बोला है कि अगर इंडिया को तेल महंगा लग रहा है तो इंडिया जो है ना खरीदे, इंडिया कहीं और से तेल खरीदे। बट दे आर नॉट गोइंग टू reduce the prices, or they are they are very clear that no more these things will be managed, basically manage नहीं करेंगे रेट्स को, जो नेचुरल चल रहा है उसको चलने देंगे। बट आई बिलीव वापस से मैसेज यहाँ से भेजा जाएगा कि औकात में आ जाओ। ओके, एंड देन आई थिंक देयर विल बी सम न्यूज़ वेरी वेरी सून। आई थिंक देयर विल बी न्यूज़ एंड दैट विल पुट अ ब्रेक ऑन द क्रूड ऑयल। सो बी केयरफुल, क्योंकि मोमेंटम बहुत ही हाई हो चुका है एंड रेंज एक्सपेंशन हो चुका है। तो बहुत ही सावधानी के साथ क्रूड ऑयल को ट्रेड करिए। ओके, सो दैट्स द अपडेट ऑन क्रूड ऑयल। देन वी हैव दिस गोल्ड एंड नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस हमने जो है थर्सडे को मैंने ट्रेडर्स को कहा था कि नेचुरल गैस में लॉन्ग पोजीशंस काट दो, एंड अब नया जो रेंज है दैट इज 208 से लेके 192। सो आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड पिछले 2 दिनों में हमें नेचुरल गैस में अच्छी एक गिरावट देखने को मिली है। सो नेचुरल गैस में जो बुलिश बायस था हमारा, उसको हमने एग्जिट कर दिया था और हम मंदी में आ गए थे। और अब जो इसका टारगेट है, इसका टारगेट ये है दोस्तों कि 210 से लेके 185, ये जो 25 पॉइंट है, इसमें हम इसको डाउन ट्रेंड में अभी प्ले करेंगे और इसके बाद वापस से हम तेजी में प्ले करेंगे। ओके, नाउ वन थिंग which is नोटिसेबल इज दैट कि क्रूड ऑयल भी एनर्जी है, नेचुरल गैस भी एनर्जी है, बट क्रूड ऑयल न्यूअर हाइस पे जा रहा है और नेचुरल गैस करेक्शन कर रहा है। सो मेनी टाइम्स दे मूव ऑपोजिट। सो व्हाट आई बिलीव इज once we touch the 185 mark where the 200 DMA lies, I think it will be turn of natural gas. Okay, क्योंकि इसमें एक तेजी पेंडिंग है। So maybe it is doing the deeper retracement, it is allowing the fuel, it is allowing the crude to complete its cycle, and then probably natural gas will start the next cycle, something like this. Okay, because if I see from psychological perspective, this is the bottom, this is the flush, and then we have been moving in a bigger mountains, correct, in this manner. तो मैं इसका इंतजार करूंगा, 185 के आसपास मैं देखूंगा, और यहाँ से अगर इसमें एक रिवर्सल आता है तो मैं इसमें एक बड़ी चाल के लिए खेलूंगा। 185 से लेके 255 260 में भी हूँ, 300 भी चल जाएगा। ओके,
बट अभी फिलहाल के लिए क्या रेंज है, बेरिश हूं मैं 208 से लेके, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता 208 से लेके हम प्ले कर रहे हैं 185 के लिए, ये हमारा प्लेइंग जोन है, बायस है शॉर्ट साइड एंड वी विल लुक टू सेल ऑन राइज। ठीक है, अगर इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के, बिना सोचे समझे, बिना घर वालों के परमिशन लिए बिना मत ट्रेड करना। ठीक है, ओके। अब आते हैं गोल्ड सिल्वर पे। I think we will exhaust our time, but let me try. See, copper has again come to 691. Copper पे एक अपडेट मैंने फ्राइडे को दिया था कि कोई भी मेटल्स को शॉर्ट मत करो, एंड दैट प्रूव टू बी करेक्ट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ग्रुप में जुड़ो, ग्रुप में जुड़ने के बहुत फायदे हैं। एक तो ट्रेनिंग मिलती है दो बार, एंड प्लस यू गेट एक्सेस टू मी। वन स्मॉल मैसेज कैन बी वेरी वेरी यूजफुल। So in copper, basically, it's a no trade zone, and I'm expecting this range to continue. So 702 700 से लेके हम नीचे में 674, ये रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कॉपर को। रेंज के ऊपर जाएगा तो फ्रेश वैल्यूएट करेंगे, रेंज के नीचे जाएगा तो फ्रेश वैल्यूएट करेंगे। फिलहाल इस रेंज में ये जो डैमेज था, प्राइस डैमेज था, इसको ये टाइम करेक्शन से 2-4 दिन फिलहाल तो इसी रेंज में कॉपर चलने वाला है। कोई अपडेट होगा तो मैं इसमें इन्फॉर्म कर दूंगा। रही बात बाकी तीनों मेटल्स, निकल की, जिंक की, लेड की, आई थिंक इनका जो रीसेंट बॉटम है, ये बॉटम फिलहाल के लिए होल्ड करेगा, एंड यू नो दे आर जस्ट करेक्शन absorbing the price damage by going in this sideways manner. Okay, let us come to last गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं। तो गोल्ड में एक अच्छी रिवर्सल हुई थी, गोल्ड में फ्राइडे के दिन जो है एक अच्छी रिवर्सल हुई है, but still I am not satisfied. Why? Because I want gold to reclaim the 45,200 मार्क। सो बेसिकली गोल्ड में मैं क्या चाहता हूँ, गोल्ड से मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ गोल्ड से कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ था 3 दिन पहले, इसको रिक्लेम कर ले। सो इफ गोल्ड कम्स अबाउट दिस एरिया, ये जो हार्ड रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर एक बार गोल्ड आ जाए, देन आई थिंक गोल्ड विल बी इन ट्रेंड। गोल्ड जो है अपने आप को बचा लेगा। तो 45,200 ये लेवल को आप ध्यान में रख सकते हैं कि बॉस 45,200 ये जो लेवल है ना, ये इसका सबसे बड़ा मॉब लेवल है। इसके नीचे जब तक है, ये आपको ट्रेड कर सकता है 44,066 तक, यहाँ तक। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत ही अच्छी रैलीज शुरू होंगी। इसके ऊपर जो है क्वार्टरली क्लोजिंग के लिए सिर्फ 15 दिन बचे, तो क्वार्टरली क्लोजिंग आप देख सकते हैं, जब से 1 जैन से आप देख सकते हो, दिस इज द 1 जैन टॉप था, एंड पूरा डाउन ट्रेंड में ये चल रहा है, जो कि बहुत ही यूनिक है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में गोल्ड हमेशा बुलिश रहता है। ओके, सो इफ गोल्ड हैज एनी शेम लेफ्ट, तो ये क्या करेगा, ये इसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेगा, एंड लीडिंग अप टू द मार्च monthly closing, it will try to at least bounce back towards this 47,000 levels। थोड़ा बहुत यहाँ पे कैंडल को क्लोज करना, even if this is bearish going forward, it will still try to close this month somewhere near 48,000। okay, somewhere near 48,000, this is my expectation। 47,500 से लेके 48,000। okay, सो ये मैं दो चीज़ों को अच्छे से वॉच कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म में। 45,200 का लेवल, जिसके ऊपर गोल्ड एक अच्छी ग्रिप में आ जाएगा, बुल ग्रिप में आ जाएगा, एंड ऑन द डाउन साइड 44,066। नाउ अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तब गोल्ड में कोई भी सौदा रखना नहीं है, क्योंकि इसके नीचे जो है गोल्ड जो है काफ़ी रिस्की और डेंजरस हो जाएगा, तो सौदे को काट देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फ्रेश लॉन्ग ट्रेड क्रिएट करना है तो 45,200 के ऊपर क्रिएट कीजिए। जिनको ट्रेड करना है, ये रेंज में आप अप डाउन दोनों, शॉर्ट लॉन्ग दोनों कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, सो आई थिंक काफ़ी डिटेल में आपको मैंने गोल्ड की एक एक्सप्लेनेशन दे दी है। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सिल्वर में फिलहाल मेरा कोई ऐसे खास बुलिश मोड नहीं है, बट हाँ लेवल्स अच्छे हैं, एंड थोड़ा बहुत गेन्स इसमें फिलहाल मिल सकते हैं। So silver में basically what I'm trying to see is whether it can defend this level. So if it can defend this level going forward, I feel silver would have created a nice bottom, price and time bottom over here, and I've already put the date also, 15th March. So I'm expecting silver to bottom out by 15th March, and from here we should start the rallies to these higher levels. सो सिल्वर में एज सच ना मैं कोई ट्रेड एडवाइस करूंगा, ना कुछ कहूंगा, बस यही कहूंगा कि हाँ, ये जो रिसेंट लेवल्स हैं
ये सब अच्छे लेवल्स हैं और एक अच्छा सपोर्ट सिल्वर में एग्जिस्ट करता है लगभग 63,800 एंड 64,000 का। सो 64,000 को आप एक रेफरेंस लेवल मान सकते हैं। आने वाले हफ्ते में आई एम एक्सपेक्टिंग सिल्वर 15 मार्च तक मेरा एक व्यू है कि ये बॉटम आउट कर जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट टू सी दी हायर लेवल्स। आप लॉन्ग अगर हैं तो 63,800 63,700 ये आपका जो बॉटम बना था लगभग 8 जून के आसपास, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, इसको रेफरेंस में रख के आप जो है लॉन्ग शॉट की तैयारी कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल। एमसीएक्स की भी बातें हमने कर ली। निकल विकल को छोड़ देते हैं। निकल विकल में देखो खतरे हैं, न्यूज फ्लो वगैरह बहुत ही डेंजरस है एंड पता नहीं आप कैसे ट्रेड करोगे। बट ये एक चीज मैं कह सकता हूँ कि जो अभी जो बॉटम बना था लास्ट वीक का, आई डोंट सी दैट बॉटम गेटिंग टेकन आउट इन दिस वीक। यानी कॉपर, निकल, जिंक, लेड, इन चारों मेटल्स पे इस वीक का जो बॉटम है मुझे नहीं लगता कि ये टूटेगा। आई थिंक दैट बॉटम इज गोइंग टू स्टे फॉर मैनी डेज एंड ये वापस से ऊपर की चाल में ये शुरू हो जाएंगे। निकल पे एक बात मैं खास तौर पे कहूंगा वो ये कि इसमें ज्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो चुका है एंड यू नो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मच हायर लेवल। कोई बहुत अच्छी न्यूज आएगी तो ही ये जा सकता है। सो निकल में जो है आप देखिए बहुत ही सॉलिड एक क्रैश हुआ है इसमें लास्ट वीक एंड एट बेस्ट आई थिंक बेस्ट अगर बेस्ट बेसिस पे जाता भी है तो देखो 1350 जा सकता है जहां पे ह्यूज हैवी ड्यूटी रेजिस्टेंस यहाँ पे हैवी ड्यूटी रेजिस्टेंस। सो ये इस तरीके से है, ये ट्रेड कर सकता है। ये बॉटम अच्छा है, 1180 वाला बॉटम अच्छा है और 1350 का रेजिस्टेंस अच्छा है। तो इसमें जो है आप देखिए आपको लॉन्ग का मौका मिले तो आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी। So that's all. That's all. Okay, so now I think stocks लेना है कि नहीं लेना है? Let me think. Okay guys, before I proceed, let me tell you कि next जो training है that is scheduled on March 21st and 20th and 21st March. So 20 और 21 मार्च को next training है and this training is again going to be on complete market thing, price action, technical analysis, psychology analysis and all the regular stuff plus how to trade Nifty, Bank Nifty, Forex and MCX, all these three separately. So a lot of things are there. Last training जो हमने ली थी that was very exhaustive. पूरा दिन निकल गया, morning from almost 9:30 to evening almost 8:30 हो गया था. So it was a very long training because we discussed a lot of things. So all the details are there. You can WhatsApp and you can register. Once you register, you will be added in our Telegram group. So that's the only way to get added in our Telegram group. There is no other way. You have to register as a student. ओके एंड दोस्तों चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। और जो लोग बंगाल साइड से हैं आप लोग अच्छा वोट कर सकते हो। ओके सो जो अभी नए नए दोस्त जुड़े हैं, नमस्कार। दीपक भाई जुड़े हैं, देवदास भाई जुड़े, आशीष भाई जुड़े हैं। ओके सो लेट मी टेक पिरामल। देखो पिरामल में गड़बड़ हो गई है। पिरामल में जब डिप गया था तो आपको थोड़ा सा इसमें वो करना चाहिए था। पिरामल में क्या कहूँ, पिरामल देखो ऐसा सिचुएशन है कि अभी तक प्रीवियस व्यूज ही करेक्ट हैं, यानी कि ट्रेंड इज अप, राइट। एंड इसमें देखो मेजर सपोर्ट अब 1820 का है। पिरामल में मेरे ख्याल से अपसाइड कंटिन्यू होने वाली है। दैट इज वेरी 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 कन्विंसिंग एंड 1800 इज अ रॉक सॉलिड सपोर्ट। तो स्टॉक में अगर आपको 1800 का भाव दिखता है तो अगर आपके पास शॉर्ट है तो आप शॉर्ट को कट कर दीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी ऊपर जाने वाला है। ओके सो इन नेक्स्ट राउंड इट कैन डेफिनेटली क्रॉस 2000 वेरी इजीली एंड एज यू कैन सी 2000 के बाद इस स्टॉक में रेजिस्टेंस नहीं है। ओके ये देखिए, ये क्रैश के पहले का ये आखिरी लेवल था। दिस इज द लास्ट 2016 हाई एंड जस्ट बिफोर 2019 crash started by breaking of this level.
तो ये इसके ऊपर अगर गया तो ये बहुत तेजी में जा सकता है। मिनिमम मैं कहूँ तो कम से कम 2200 2180 यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल। नीचे में देखो 1814 का जो लेवल है कैश में, आई थिंक ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। एंड यहाँ पे शॉर्ट्स को कट कर देना चाहिए, ठीक है। एक बार के लिए काट दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे अगर ये आएगा और निफ्टी जो है अपना मेंटेन किए हुए हुए है अपना मेन लेवल्स, तो हम इसको लॉन्ग करने का भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये डिटेल एनालिसिस मेरे फ्रेंड आशीष के लिए। चलिए नेक्स्ट जो स्टॉक है वो हम लेने वाले हैं स्टार। स्टार, ओके। प्लीज डू नॉट स्पैम, प्लीज डू नॉट टाइप द सेम नेम अगेन एंड अगेन, नहीं तो स्पैम मत करिए, नहीं तो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाओगे, करेक्ट। हाँ, मेरे जो कैलकाटा के फ्रेंड्स हैं, आप समझ गए ना। जय श्री राम, यस, ठीक है। ओके, सो स्टार, स्टार में देखिए स्टार में क्या हो रहा है, स्टार में क्या हो रहा है। स्टार में जो है लास्ट वीक का जो कैंडल बना है ये मुझे अच्छा लग रहा है। लास्ट वीक का कैंडल जो मुझे अच्छा लग रहा है, स्टार में अगर 800 का भाव आता है तो मैं इसको बाय करूंगा। और स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा, 770, ठीक है, 770। तो स्टार में बाइंग की मैं सलाह दूंगा, ठीक है। बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है इस बाजार में, स्पेशली फार्मा में, ठीक है, क्योंकि फार्मा में डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफी स्ट्रांगली चल रहा है। So why I will prefer a long trade, because you have good supports existing in various formats, and this is the triangle consolidation which is going on. Okay, so star में देखिए 800 पे बाय करेंगे, 770 या 760 का इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। आई थिंक इट इज 775 के आसपास है। एंड देन द अप मूव विच विल बिगिन, इसका टारगेट मैं रखना पसंद करूंगा लगभग 1050 के आसपास, लगभग यहाँ पे, ठीक है। सो ये मेरा एक पोजिशनल व्यू है स्टार के लिए। ओके, स्ट्राइड्स फार्मा ये पोजिशनल व्यू है आने वाले कई हफ्तों के लिए। जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तब तक ये व्यू वैलिड है। ओके, नेक्स्ट है माइंड ट्री। नेक्स्ट है माइंड ट्री, टाटा मोटर्स, टीसीएस, बहुत सारी क्वेरीज है। लेट मी टेक वन बाय वन। माइंड ट्री में क्या हो रहा है, देखिए माइंड ट्री में वीकली चार्ट्स पे हेल्दी कंसोलिडेशन है। ओके, एंड आई बिलीव माइंड ट्री, आई थिंक माइंड ट्री में मैंने लॉन्ग ट्रेड बोला था यार लास्ट वीक, क्या बात कर रहे हो। माइंड ट्री में तो मैंने लॉन्ग ट्रेड कहा था। आई डोंट नो किसी को याद है कि नहीं याद है, मुझे अब याद आया। So very clearly I had suggested, why, because this is the previous all time high. We have a nice moving average support as well as price pivot zone support, as well as you have a nice trend line support also over here. So this is the reason why I suggested कि इसमें जो है हम तेजी एक बना सकते हैं, and this is a very beautiful chart structure, very beautiful chart structure. So माइंड ट्री में फ्रेश ट्रेड अगर आपको चाहिए तो मैं क्या सजेस्ट करूँ। फ्रेश ट्रेड देखो आप कहाँ ले सकते हैं यार, यहाँ तो नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर है। ओके, सो एक अच्छा लेवल में इसमें ये बता सकता हूँ कि आप बाय कर सकते हैं लगभग 1687 पे, 1687 पे, 1680 पे आप बाय कर सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 1622 का। ओके, 1622 का। ओवरऑल देखो मैं इस पे तेजी में हूँ। वाई, बिकॉज आई लाइक दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, इट्स अ वेरी नाइस बुल फ्लैग, वेरी वेरी स्वीट, एंड ऑन मंथली चार्ट्स फैंटास्टिक, वेरी वेरी टाइट कंसोलिडेशन। सो जनरली ये चीज़ें जब एक ब्रेकआउट करती हैं तो ये 2-4 महीने तक अपसाइड में ट्रेड करती हैं, और इनके टारगेट जो है आराम से आपको 2200-2300 के आसपास आ जाएगा। तो अगर आप इस व्यू के लिए प्ले करना चाहते हो, like for next 2-3 months, then what I would suggest is wait for a decent correction, wait for correction towards that 1622 type of a level, और यहाँ पे आप घुसिए, यहाँ पे आप एंटर कीजिए 1600 के आसपास, और ये जो बॉटम बना है 1520 1530 का, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। So try to enter near 1600, try to keep 100 points buffer as a stop loss on cash, and then just ride the trend. You may see at least 400 to 500 points up move. So it's a very fantastic medium term trend. Okay. हाँ, अब अगर आप डे टू डे पूछ रहे हैं, then I will not be able to tell you. For that you need to do the super chat. अगला स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर देखो लास्ट वीक हमने वेडनेसडे को शायद लिया था, और 113 रुपए की इसमें एक टारगेट मैंने डिस्कस की थी कि 113 ये जो टारगेट है इसमें आना चाहिए, और मैं देख रहा हूँ कि 113 ही इसका टॉप बना है। क्या बात है, एक्सेलेंट। सो मेरा टारगेट दोस्त इसमें हो चुका है। रीजन मैंने बताया था, ये देखिए ये जो ब्लू लाइन है, दैट इज द ह्यूज रेजिस्टेंस ऑफ लास्ट सो मेनी ईयर्स।
सो टाटा पावर पे प्रॉफिट्स लॉक करो, अब इसको छोड़ दो काफी दिनों तक, एंड देन वी विल सी लेटर ऑन। ओके, जाने को ऐसा सेट ये पूरा जा सकता है 180 तक, बट फिलहाल पीस बाय पीस प्ले करते हैं। ओके, SBI कार्ड, सी वन पर्सन प्लीज एक ही क्वेरी टाइप कीजिए, डू नॉट टाइप मल्टीपल क्वेरीज। इफ यू हैव मल्टीपल क्वेरीज 5-10 लाख का सुपर चैट कर दो, मैं आराम से ले लूंगा, ठीक है। ओके, आते हैं SBI सुपर कार्ड, SBI सुपर कार्ड नहीं, SBI कार्ड पे। तो SBI कार्ड पे क्या सिचुएशन है, देखिए 21 DMA पे आ चुका है स्टॉक, तो इसको टेक्निकली आप जो है क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या रखोगे, प्रीवियस बॉटम विच इज 1998 यानी 1000। ओके, सो कैसे ट्रेड करेंगे, आप बाय कीजिए डिप में, 1000 का स्टॉप लॉस लगाओ एंड अगले अप ट्रेंड में न्यू हाई पे इसको बुक कर लीजिए। वेरी सिंपल, सिंपल टेक्निक। अप ट्रेंड है, इंटैक्ट है, मेजर सपोर्ट जानना चाहते हो तो मेजर सपोर्ट है आपका 970। आई डोंट थिंक कि मेजर सपोर्ट जो है नियर टर्म में ब्रेक होने वाला है। आई थिंक स्टॉक जो है आपको बड़े आराम से 1200 तक ये लेके जाएगा, ठीक है। नाउ ये जो लेवल्स हैं, जो मेजर सपोर्ट्स है, ये तभी टूटेंगे जब निफ्टी 14,770 वाला लेवल ब्रेक करेगा। अच्छा, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए कि निफ्टी अगर वो 770 750 वो जोन को अगर ब्रेक करेगा तो फिर इन स्टॉक्स में जो है ना डीपर करेक्शन होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां तक हम इंडेक्स को इग्नोर कर सकते हैं व्हेन वी आर ट्रेडिंग दिस इंडिविजुअल स्टॉक्स, बट जब इंडेक्स ही अगर ब्रेक डाउन करेगा तब ये सब स्टॉक्स भी टूटेंगे, तब आप इनको सेव नहीं कर पाओगे। तो एक बार के लिए उस लेवल को थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। देखो ये स्टॉक यार वैसे भी डेड है, मुझे पसंद भी नहीं है स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक में इट्स नॉट अ स्टॉक फॉर मोमेंटम गाइस, एंड शॉर्ट टर्म में स्टॉक अभी थोड़ा मंदी में है। 200 तक ये जा सकता है, 205 पे है, 197 198 कैन बी टेस्टेड, एंड ओवरऑल एज सच कोई बड़ा कोई इसमें सौदा, बड़ा कोई ट्रेड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, एक चीज जो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर नीचे आता है 196 197 के आसपास, तो वहां पे थोड़ा इसको 1-2 दिन हम समय देंगे and then we may try to buy. Okay, provided index has not broken down, we may try to go long again in this stock, and in next round we can easily see 225. तो आई थिंक ये एक अच्छा 10 से 15% का अप मूव इसमें हमें देखने मिल सकता है। 196 के नीचे गलती से भी लॉन्ग नहीं करना है, बिकॉज देन 180 का डाउनसाइड टारगेट स्टॉक में ओपन हो जाएगा। टाटा मोटर्स पे आते हैं, अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। Okay, now see, Tata Motors is an interesting case. Tata Motors is an interesting case. Why? देखो, जब दो पहाड़ के बीच की डिस्टेंस अगर छोटी हो जाए और पहले एक अच्छा ट्रेंड चल रहा हो तो ये फिर एग्जॉशन की एक निशानी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था, पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था, दो पहाड़ों के बीच की दूरी कम हो गई एंड देन करेक्शन में चला गया स्टॉक। सो टाटा मोटर्स में ये जो एक चीज हुई है लास्ट वीक, दैट इज लिटिल कंसर्निंग, एंड आई बिलीव फॉर द शॉर्ट टर्म टाटा मोटर्स को आपको प्ले करना है तो आपको वीकली चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो एज पर दिस चार्ट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, इफ यू आर टेकिंग एनी लॉन्ग ट्रेड, डोंट स्ट्रेच इट बियॉन्ड 380। बात को समझिए, वीकली चार्ट देखो, ठीक है। वीकली चार्ट क्या कहता है, वीकली चार्ट ये कहता है कि भाई साहब ये 3 हफ्तों का एक हमने कंसोलिडेशन किया इस तरीके से, वेरी नैरो रेंज, राइट, एंड वी ट्राई टू break away from this, we tried to break away from this, but what happened, sudden selling came and this turned out to be a failure, ठीक है। ये एक फेल्ड ब्रेकआउट हो गया। अगर हम डेली की बात करें तो ये जो कैंडल बना है, इट्स अ काइंड ऑफ आइलैंड रिवर्सल आप बोल सकते हो या अबेंडेंट बेबी बोल सकते हो, जो बोलना है, ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। एंड प्लस द डिस्टेंस बिटवीन द माउंटेन्स। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई वुड सजेस्ट इज टू थिंग्स। नंबर वन, इग्नोर दिस स्टॉक, ठीक है, इग्नोर दिस स्टॉक फॉर द टाइम बीइंग। और इस स्टॉक को आप अगर बाय करना चाहते हो तो आप एक न्यू हाई पे बाय करो, ठीक है। रिस्की है बट
बहुत ही अच्छा चलेगा, ठीक है। सो एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि अगर आप इसको बॉटम फिशिंग करना चाहते हो तो आपको 318 का स्टॉप लॉस यूज करना होगा। इसमें क्या होगा कि अभी स्टॉक है 325 का, मान लो आपको 320 पे मिलता है, 3 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगाते हो एंड सडनली वो भाग गया ऊपर, तो आपको बहुत ही शानदार एक ट्रेड मिल जाएगा। बट ये प्योरली रिस्क रिवॉर्ड बेसिस है, तो आप स्टॉप लॉस भी खाने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। उसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। सो दो तरीके मैं बता रहा हूँ, या तो अगर लॉन्ग करना है तो 318 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करो, ओके। या फिर अगर टेक्निकली प्ले करना चाहते हो तो इसको थोड़ा दिन छोड़ दो एंड देन वी विल इवैल्यूएट इट फर्दर। वीकली चार्ट देखने के बाद ये मुझे लगता है कि ऑन अ वीकली बेसिस, यानी एक बड़ा ट्रेंड इसका ये भी है कि जब तक ये 300 को ब्रेक नहीं करता है, स्टिल व्हाट इट कैन डू इज इट मे कम डाउन टुवर्ड्स 300 and in second round it may very well start to take out the resistance and move towards the 380 mark। तो आई थिंक बहुत ज्यादा शानदार तरीके से समझा चुका हूँ, इससे बेस्ट इसका टेक्निकल एनालिसिस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तीनों सिनारियो बता दूंगा कि छोटे ट्रेडर को क्या करना चाहिए, बड़े ट्रेडर को क्या करना चाहिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर को क्या करना चाहिए, तीनों चीज बता चुका हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एंड दोस्तों थोड़ा स्टॉक क्वेरीज आज कम लेंगे क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है एंड आई हैव बीन स्पीकिंग अ लॉट। सो कुछ खास केसेस में लेता हूँ एंड देन वी विल वाइंड अप। जो क्वेरीज होंगी आप क्वेरीज लिख दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा, हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ओके, सो टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस जो है, इसमें आप अगर लॉन्ग है तो ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं एंड मेंटेन द रीसेंट स्विंग लो एज अ स्टॉप लॉस। ओके, सो any kind of a stock where you are long, try to maintain recent swing bottom as your by default stop loss and same goes for TCS also, ठीक है। TCS में जो ये जो अपट्रेंड शुरू हुई है, आई थिंक it will go towards at least 3,150 3,200, ओके। 3,150 से लेके 3,200 तक ये अपमूव जा सकता है। तो अभी भी टीसीएस में देखा जाए तो 150 से 200 पॉइंट का अच्छा खासा स्कोप है, ठीक है, अभी भी स्कोप है। एसबीआई, आज मैं सरप्राइज हूँ कि एसबीआई का किसी ने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि एसबीआई बहुत ही फैंटास्टिक एक पोजीशन पे है और एसबीआई में बहुत लोग ट्रैप भी होने वाले हैं। तो लेट मी टेक एसबीआई। सो एसबीआई में मैंने पहले क्या कहा था कि 382 का, सॉरी या 382 कि 382 इसका जो है रॉक सॉलिड लेवल है एंड 382 383 जब तक ये प्रोटेक्टेड है, इसमें अपसाइड के लिए ही मैं देख रहा हूँ। अब फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को ये लेवल ब्रेक हुआ, करेक्ट। ये बात मैंने इस टाइम कहा था तो एक रैली हुआ, इस टाइम कहा था तो एक रैली हुआ, अब इस टाइम कहा तो ये फेल हो गया। व्हाई? बिकॉज माय स्टूडेंट्स नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सच support levels. So why I am saying that people will be tracked, because I believe that SBI का नीचे में सस्टेन करना ना, यहाँ पे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है मुझे। ओके, सो व्हाट आई फील इज दैट अगर आप इसमें शॉर्टर हैं तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप इसको यहाँ पे ट्रेल कर दीजिए, विच इज समवेयर 390। तो एज अ शॉर्टर आप 390 पे ट्रेल कर दो। अगर मान लो ये वाकई में पूरा नीचे के मूव में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको अच्छा खासा इसमें गेंस मिल जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी अच्छा खासा गेंस मिल रहा है, कल आप देखते हैं कि ये अगर नीचे जा रहा है तो आप इसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ये कहूंगा कि आप ट्रेल करते जाइए, ठीक है। अगर आपको अच्छा मिल रहा है एंड टुमारो यू गेट अ चांस टू एग्जिट, देन एग्जिट कर दीजिए। अगर आपको इसको तेजी करना है, लॉन्ग करना है, तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि अभी एक दिन रुक जाओ, because what I believe is it is most likely to make a bear trap in this part and then again fly towards this 430 440। ओके, सो थोड़ा ट्रिकी है मामला, इसीलिए थोड़ा हम स्मार्ट तरीके से इसमें काम करेंगे, ठीक है। तो जो शॉर्ट साइड में उनके लिए एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिनको लॉन्ग करना है अभी आप लोग 1-2 दिन वेट कर लीजिए, ये मेरा व्यू होगा इसमें, ठीक है। और अगर जिन्होंने पहले लॉन्ग किया है तो आपका स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका है। Okay, so it has been 1 hour and 10 minutes। डॉक्टर रेडीज, एक बार डॉक्टर रेडीज की तरफ चलते हैं क्योंकि इस पे हमारी बाइंग पोजीशन एक जो थी 4,400 4,500 के स्टेज पे। तो ठीक है, इसका स्टॉप लॉस एज यूजुअल जो पहले बोल चुका हूँ वही स्टॉप लॉस है
You have to keep stop loss below say 4400, so you can choose to keep say 4300 as a stop loss. Fine. So no change in the view. Okay, so keep 4300 is a good enough level on this type of a stock which is trading in 4000s. Next query है GUF, what is this? Gulf and Pacific बायोसाइंसेस. ओके ठीक है. ओके सो ये जो स्टॉक है आपका, देखिए ये स्टॉक में क्या कहूँ मैं, ये स्टॉक में लेट मी सी. ओके ओके सी आई थिंक ये स्टॉक अभी either it is in some kind of bearish distribution. It's very difficult to gauge. Why? Because see, it's a mixed signal. यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन लग रहा है, बट मंथली चार्ट पे अभी भी ठीक लग रहा है. सो ऐसे केसेस में डील कैसे करेंगे? मैं ये सलाह दूंगा कि सपोज आपका अगर बाइंग है, आपका तेजी है, तो आप जो है इसको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए. आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 106 के आसपास. ठीक है, 106, या आप इसको राउंड फिगर 100 भी कर सकते हैं. अगर आपको फ्रेश बाई करना है तो आई थिंक इट्स बेटर टू वेट, बिकॉज यहाँ अगर नीचे आता है तो वो ज्यादा बेहतर लेवल होगा. ओके, सो दैट्स ऑल आई कैन से ऑन दिस स्टॉक एज ऑफ नाउ. और शॉर्ट तो आपका होगा नहीं स्टॉक में क्योंकि इक्विटी है. करेक्ट. सो ये चीज हो चुका है. लेट मी टेक BEML पे क्वेरी है. लेट मी टेक दिस स्टॉक. ओके सी 1183 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. अगर आपको याद हो तो ये स्टॉक हमने थोड़े दिन पहले या लास्ट वीक शायद ये लिया था. एंड अगला जो इसमें टारगेट मैंने कहा था वो था 1230 के आसपास. ठीक है, 1050 की ब्रेकआउट थी, 1230 का इसमें टारगेट था. सिंस देन स्टॉक जो है साइडवेज चल रहा है. स्टॉक अभी भी तेजी में है, प्राइस करेक्शन कर रहा है, बुल फ्लैग पैटर्न यहाँ पे डेवलप करेगा. फिलहाल थोड़े दिनों तक ये इसी रेंज में चलेगा, 1145 से लेके 1245-50 के आसपास. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट टारगेट जो है इसमें, नेक्स्ट टारगेट आपका आएगा 1300-1350. ओके, सो ऐसे आप इसको प्ले कर सकते हैं. लॉन्ग्स अगर आपकी है तो मैं कहूँगा 1060 पे ट्रेल करो. 1060 पे आप ट्रेल कीजिए. अगला क्वेरी है BHEL यानी भेल विदाउट पूड़ी. 52 पे स्टॉक है एंड वेरी ओवरबॉट एंड स्टिल अपसाइड टारगेट इसका 60 का मैं दे चुका हूँ. यहाँ पे लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके बैठे हम. सो 60 का टारगेट है, होल्ड करेंगे. एंड ट्रेलिंग क्या करेंगे? ट्रेलिंग अभी कर सकते हैं 42-45 पे. नेक्स्ट स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB. Let me take Bank of Baroda. Let me see Bank of Baroda. Okay. Welcome. So I think I've taken a few queries and 80 rupees पे stock है as of now. Stock is weak, yeah. Stock is weak and I think stock is going down towards 73. So ये स्टॉक पे मेरा टारगेट था 9800 का. दैट टारगेट गॉट अचीव्ड 2 weeks बैक एंड सिंस देन इट इज करेक्टिंग. सो या इट्स बेरिश एज ऑफ नाउ, बेरिश अंडर 87 एंड टारगेट इज योर 73.5. 73.5 is your target for Bank of Baroda. Okay, only one query per person please. Next stock is BEL. देखो ये मेरा एक मीडियम टर्म में बहुत ही तेजी काउंटर है. जो जिनको याद नहीं है, 2020 से ही इस स्टॉक में मैं ट्रेड करवा रहा हूँ. ओके, दोस गाइस इफ यू रिमेंबर फ्रॉम 60s 70s देन 128 की ब्रेकआउट वगैरह, ये सब मुझे याद है क्योंकि इस स्टॉक को मैंने इसमें काम करवाया है. So as of now, stock is bullish and next targets are 160s, 170s. तो आप इसको होल्ड कर सकते हो एंड ट्रेल करना सीखो. 130 पे ट्रेल करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही सेफ रहेगा. स्टॉप लॉस मुझे नहीं लगता हिट होगा. एंड नेक्स्ट जो है 160s एंड 170s का इसमें जो है आपको टारगेट आएगा. ठीक है, वेरी गुड क्वेरी कि हाउ इज निफ्टी लुकिंग टुमारो. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिवाइंड द वीडियो. इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूरा डिटेल एनालिसिस है निफ्टी, बैंक निफ्टी और TMC, तीनों पे एनालिसिस है. हाउ इज गति पे क्वेरी है. देखो गति की दुर्गति होते होते बच गई और गति जो है इसने अच्छा अपना बेस बनाया है.
Sorry, I'm talking about Maruti. गति में इसके बाद लेता हूँ. So Maruti has made a very good base at 6900 level. That was the 200-day moving average. But problem ये है कि इसका जो 7300 and 7400 ये जो एक heavy resistance है, I think it's very difficult to cross. इसके ऊपर जो है ना ये बहुत ही अच्छा bullish move देगा. So try to understand, this is a very huge resistance, and this was the head and shoulder breakdown as well. So it's very difficult for Maruti, to negotiate and move up about this. So कैसे इसको हम प्ले कर सकते हैं? अगर देखिए आपकी लॉन्ग है यहाँ पे 200 डीएमए पे, अगर लॉन्ग है तो जनरली 200 डीएमए से एक अच्छी उछाल आती है, एक अच्छा बाउंस आता है, करेक्ट? सो यहाँ पे आपको 7400 तक की तो बाउंस इसमें मिल जाएगी, वहां पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो. सपोज अगर 704 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो आप पार्ट बुकिंग कर सकते हैं एंड पार्ट को आप होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज अबाउट दिस स्टॉक हैज कैपेसिटी टू ट्रैवल टुवर्ड 78 तो ये बात है, इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं. बट 7400 के लेवल को ध्यान में रखिए, इट इज वेरी वेरी हैवी सप्लाई जोन, लॉट ऑफ सप्लाई एट दैट लेवल. ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक इज गति. सो गति जो है देखिए 113 पे है एंड हैवी वॉल्यूम्स इसमें आया है लास्ट in 3-4 sessions, and stock has also moved fantastically well. So मैं ये सलाह दूंगा कि स्टॉक को होल्ड करो. why? Because I'm seeing a very nice volatility breakout. So I would suggest कि इस स्टॉक को आप थोड़ा रिस्क लो, एंड आई थिंक इस स्टॉक में ये डिजर्व करता है, ये स्टॉक में रिस्क लेना बनता है. तो 133 का टारगेट इसमें मिनिमम आना चाहिए, 133 से लेके 150 इसमें होना चाहिए टारगेट, ठीक है? हो सकता है पेशेंस थोड़ा दिखाना पड़े क्योंकि ऑलरेडी काफी रनअप हो चुकी है, बट आई थिंक यस दिस स्टॉक डिजर्व 133 एंड 150. ठीक है, सो दोस्तों ये है वीडियो, लगभग 1.5 घंटा का हो चुका है. सो आई विल हैव टू वाइंड अप, बट लेट मी सी इफ आई कैन टेक आई कैन एडजस्ट 1 or 2 स्टॉक. देन कौन सा स्टॉक लूँ मैं? मारुति हो चुका है, BEL हो चुका है, इन्फोसिस एक बार लेते हैं. इन्फोसिस, ओके. सो इन्फोसिस राइट नाउ 1316 पे ट्रेड कर रहा है, एंड देयर इज अ breakout, you can say a triangle breakout, double bottom support, all these things. But target क्या होगा? देखो ये स्टॉक बहुत ही स्वीट है, इट्स वेरी नाइस, एंड टारगेट जो इसमें होगा, अगर आप इसको सपोज 2 महीने के लिए रखना चाहते हैं, देन 1500 का इसमें टारगेट है, मिनिमम 1500 का इसमें टारगेट है. आपकी पोजिशनल जो लॉन्ग्स हैं कैश में, नॉट एफएनओ, कैश में, तो आपकी स्टॉप लॉस देखिए मैं दे रहा हूँ आपको 1225 का आपका स्टॉप लॉस है. कम से कम 1500 और 1600 का इसमें टारगेट है इन कमिंग 2 months, आई वुड से 8 वीक साइकिल में. अगला स्टॉक है राइट्स, RITES. दोस्तों फ्रेश क्वेरीज मत पूछिए क्योंकि अब वीडियो वाइंड अप करने के मुकाम पे हम आ चुके हैं. टाटा पावर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, टाटा पावर में 113 का मेरा टारगेट था, दैट इज डन, अभी कोई व्यू नहीं है. राइट्स पे देखिए स्टॉक में फिलहाल जो है तेजी ठीक है. आई थिंक 239 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड यू विल सी 300 वेरी सून. स्टॉप लॉस को फॉलो करो, 240 का आपका स्टॉप लॉस है एंड टारगेट है आपका 302 का, ठीक है? SBI एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, SBI हमने डिस्कशन कर लिया है. ओके, लास्ट स्टॉक फॉर द डे BPCL. एक बार BPCL चेक कर लेते हैं. BPCL में देखो 100 पॉइंट्स की रैली हमने करा दी है, राइट? सो 100 पॉइंट्स रैली इज ओवर इन BPCL. नाउ व्हाट इज द फ्रेश व्यू? सी एज ऑफ नाउ इसमें फ्रेश अगर आपको बाय करना है तो आपको वेट करना होगा, एंड 440 435 दिस इज द अर्लियर जोन, रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है? ये अच्छा जोन होगा 440 435 का, और स्टॉप लॉस के तौर पे आप इसको लगाएंगे 410 का स्टॉप लॉस. और अगला इसमें क्या टारगेट होगा? अगला टारगेट होगा लगभग 520 550 के आसपास का, नेक्स्ट राउंड में ये टारगेट्स होगा. ओके, डू नॉट चेज प्राइसेस, let them correct and then only buy. You should not be the one, hang,
being a buyer at the top. You should always buy at correction. Shipping Corporation. Shipping Corporation of India, right? सो 129 पे है स्टॉक एंड वेरी ओवरबॉट. अभी फ्रेश इसमें मत लीजिए कोई ट्रेड. टारगेट के तौर पे अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि टारगेट इसमें काफ़ी बड़ी टारगेट है वैसे. ठीक है, बड़ी टारगेट है. बट फिलहाल आप इसमें जो है थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग कर लें तो मेरे ख्याल से उचित होगा, बिकॉज दिस शिपिंग दे मूव इन टैंडम टू यू नो द क्रूड एंड द कमोडिटी साइकिल. तो मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लो, आधा प्रॉफिट बुकिंग कर लो और आधे को छोड़ दो. अगर रैली कंटिन्यू होती है तो आपको 200 का भाव भी इसमें मिल जाएगा. ठीक है, सो ये चीज़ आपका हो चुका है. एंड लास्ट व्हाट आई वुड से इज दैट आई एम टेकिंग फिनोलेक्स. फिनोलेक्स इसमें ले लेते हैं. फिनोलेक्स केबल्स. निफ्टी एनालिसिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो प्लीज रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट. ओके, सो फिनोलेक्स केबल जो है 401 पे चल रहा है. वेरी गुड काउंटर स्ट्रक्चर, इज वेरी नाइस. तो अगर आप इसमें लॉन्ग हैं तो आप 370 का ट्रेल कीजिए. 370 का ट्रेल कीजिए. बीपीसीएल, बीएचईएल आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड निफ्टी एंड ऑल एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड. ओके, अच्छा फिनोलेक्स केबल्स नहीं, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है. ठीक है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ओके. चलिए, लास्ट क्वेरी ऑफ द डे. 657 पे स्टॉक है. आई थिंक ये तो ठीक है. लेट मी सी. ओके, ठीक है. थोड़ा सा इसको रखना पड़ेगा. थोड़ा सा इसमें जो है 600 के आसपास थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देन नेक्स्ट राउंड में ऑल टाइम हाई के आसपास इसको एग्जिट करेंगे. सी थोड़ा सा एंडिंग डायगोनल मुझे लग रहा है. सो लेट अस सी. एक अपसाइड यहाँ तक है, 720 तक की अपसाइड इसमें है. यहाँ पे 600 का सपोर्ट है. सो 720 तक ये लेग तो इंटैक्ट है. वहाँ पे मेरे ख्याल से एक बार एग्जिट कर देना एंड देन वी विल सी लेटर ऑन, राइट. सो आई थिंक दैट्स ऑल. एंड चलिए दोस्तों, वाइंड अप करते हैं. बहुत लंबा वीडियो हो गया है, अप्रोक्सीमेटली 1 hour and 30 minutes. जनरली हम सिर्फ 1 घंटे का सेशन करते हैं. सो आई हैव टेकन 30 minutes extra. So thank you so much for watching. Wish you all the best. कल फिर मिलेंगे हम इसी टाइम पे for Tuesday analysis and all the best. जिनको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, you can WhatsApp and then you will be provided with the further details and link. Okay, चलिए, thank you so much. Take care. All the best. जय माता दी.